So broadly we see that there are three types of disputes: civil matters, criminal matters, and revenue related matters. तीन तरह के मामले हो सकते हैं: दीवानी से संबंधित विवाद, फौजदारी मामले और राजस्व से संबंधित विवाद. In all these three matters, whether it is civil, criminal or revenue matter, the highest court of justice is Supreme Court. तो इन तीनों ही मामलों में देश की सर्वोच्च अदालत हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है. एंड देन वी हैव हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जज, एंड सिविल जज. Here also sessions judge, and judicial magistrates, and for revenue matters, Board of Revenue, Commissioner, Collector, SDM, and Tehsildar. So this is the broad division of types of category of disputes and their overall hierarchical structure. तो इस तरीके का एक ढांचा है जिसमें आमतौर पर जितने भी विवाद हैं उनको तीन बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं और इन तीनों ही तरह के विवादों में इस तरीके का न्यायिक ढांचा काम करता है. So when we talk about High Court and Supreme Court, then we can say that Supreme Court and High Courts, they both have ordinary jurisdiction and extraordinary jurisdiction. साधारण क्षेत्राधिकार एवं असाधारण क्षेत्राधिकार. यही हाई कोर्ट में भी. फर्दर वी कैन डिवाइड देयर जुरिस्डिक्शन इनटू टू टाइप्स: ओरिजिनल jurisdiction and appellate jurisdiction. मौलिक क्षेत्राधिकार एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार. both Supreme Court and High Court. So by original jurisdiction means the first court of trial where the hearing begins. मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है वह पहली अदालत जहां पर किसी मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाती है. For example, for all
civil and criminal matters, district court is the original jurisdiction. तो सारे दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए मुकदमों की सबसे पहल सुनवाई जहां होती है वो होती है जिला न्यायालय. And then on the judgments of the district court, appeals are decided by the High Court and then the Supreme Court. So it is known as appellate jurisdiction. और फिर जिला न्यायालय के जो भी फैसले आते हैं उन पर अपील सुनने का अधिकार पहले उच्च न्यायालय को और फिर सर्वोच्च न्यायालय को है. तो इसे अपीली क्षेत्राधिकार कहते हैं. Now, so far Supreme Court is concerned, there are three original jurisdiction. सर्वोच्च न्यायालय के पास 3 मौलिक क्षेत्राधिकार हैं. So what are the 3 original jurisdiction of the Supreme Court? सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? इलेक्शन डिस्प्यूट, of the office of president and vice president, federal dispute, and advisory jurisdiction. These are the 3 original jurisdiction of the Supreme Court, which means that in all these 3 matters, the first, the last and the only court is Supreme Court. So is the original jurisdiction. तो मौलिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई एकमात्र और सीधे केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी. तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादों के लिए सुनवाई करने की एकमात्र पहली और अंतिम अदालत कौन है? सर्वोच्च न्यायालय. तो ये उसका मौलिक क्षेत्राधिकार हो गया. फिर संघात्मक विवाद. Federal dispute means any dispute between 2 or more state governments or union and state government. So any dispute between 2 or more state government or states or between union and states is known as federal dispute. So it will also be heard and decided directly and only by the Supreme Court. तो संघात्मक विवाद क्या है? कि अगर 2 या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है या फिर संघ एवं राज्य के बीच कोई विवाद होता है तो उसे संघात्मक विवाद कहेंगे. इसकी सुनवाई भी सीधे और एकमात्र कहां होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी. उदाहरण के लिए कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट और एनी सच मैटर. तो चाहे कावेरी नदी जल का विवाद हो या सतलुज यमुना लिंक का विवाद हो, ये क्या हो गया? संघात्मक विवाद हो गया. एंड देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन.
under Article 143, it says that if any point of law or constitution is not clear to the government of India, then through precedent, opinion of Supreme Court can be obtained, and this is known as advisory jurisdiction. Why it is called advisory jurisdiction? Because the opinion of the Supreme Court is not binding upon the government. It is only opinion. It is not an order. It is not a judgment. And so far, 15 times, advisory jurisdiction has been exercised by the Supreme Court, and the most recent and the 15th was when the President of India asked the Supreme Court 14 questions related to assent and approval of bills by the Governor of the state and President of India. If any bill is passed by the State Assembly, then whether Governor can withhold the bill or may pass the bill or may reserve the bill or may reject the bill, or it may be kept for indefinite period of time without approval or rejection by the Governor. And the same applies to the President of India. That for how long Governor in the state and President in the Union may withhold a bill for how long a period? कितने लंबे समय तक राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास बिना अनुमति के रोके रख सकते हैं? आमतौर पर क्या होता है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा ने कोई कानून विधेयक के रूप में पारित कर दिया, तो राज्यपाल की अनुमति चाहिए, उनका हस्ताक्षर चाहिए, तभी वो विधेयक से अधिनियम में बदलेगा और लागू होगा। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को वापस कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं या संघ सरकार के पास आरक्षित करके भेज सकते हैं या उसे अनिश्चित काल तक के लिए अपने कार्यालय में लंबित रख सकते हैं। Now what had happened? That in the recent past, state government of Tamil Nadu and Kerala and etc., where there are non-BJP governments, few laws were passed by the respective state assemblies, but the governor kept these bills for an indefinite period of time, prolonged those bills, and thus these state governments went to the Supreme Court saying that governor should be given the directive to pass the bill as early as possible, because in the Constitution of India, a bill cannot be held for an indefinite period of time. It cannot be kept pending in the office of the governor. And on this matter, a division bench of the Supreme Court, 2 judges, they pronounced a judgment that maximum within 3 months' time, governor must pass the bill, approve the bill, assent the bill, sign the bill,
within 3 months, or else it will be deemed passed automatically. And if for any reason the governor has not given the assent within the period of 3 months, then they must give reasons, grounds, causes on the basis of which the bills have been kept under suspended animation. On this judgment of the division bench of the Supreme Court, President of India asked 14 questions from the Supreme Court that what should be done in such a situation. The Supreme Court has this right to give directive to the governor and the president. The Supreme Court have this right to decide the time frame to pass or assent a bill. Likewise, there were 14 questions which were asked by the President to the Supreme Court and on which recently the Supreme Court 5 judges constitutional bench gave and submitted its opinion and said that no, Supreme Court cannot decide the time frame for governor and the president to assent a bill or approve of the bill. At the same time, Supreme Court cannot give any directive or order to the governor or the president because they have judicial, legal, constitutional immunity. And Supreme Court on its own cannot declare a bill to be passed because Supreme Court or judiciary in India does not have any legislative authority. It cannot make laws, it cannot pass laws. It can only examine the validity of laws, it can only interpret the laws, but validity and interpretation of law can only take place after the law has been passed, not before that. तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 143 में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार दिया गया है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है कि यदि भारत सरकार को विधि या संविधान का कोई बिंदु स्पष्ट नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। चूंकि परामर्श मांगा है, निर्णय या आदेश नहीं, अतः सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श सरकार पर बंधनकारी नहीं है, सरकार उसे माने या न माने। लेकिन व्यवहार में होता यह है कि आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श सरकार मान लेती है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोई संवैधानिक विधिक संस्था नहीं है। लेकिन फिर भी यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के सलाह को, परामर्श को माने या ना माने। और अब तक 15 बार ऐसे परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है और अभी हाल में निकट अतीत में जो 15वां परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्रयोग किया गया वो इस विषय पर था कि राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से पूछा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिशा निर्देश दे सकता है।
क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है कि कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने में उन्हें कोई कानून पारित करने के लिए अनुमति दे देनी होगी? क्या सर्वोच्च न्यायालय स्वयं से किसी विधेयक को पारित होने की स्वतः घोषणा अपने आप कर सकता है? ऐसे 14 प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय से भारत सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से पूछे, जिस पर कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अभी हाल ही में अपना परामर्श दिया। उन सारे 14 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसका लब्बो-लुबाब सारांश संक्षेप में यह है कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश, दिशा निर्देश नहीं दे सकते। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए विधेयक पर अनुमति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं तय कर सकते। और तीसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी विधेयक को स्वयं से पारित होने की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका का काम विधि का निर्वचन है, विधि के अनुसार उसकी व्याख्या करना है, न्यायिक कार्यों का निष्पादन करना है, न कि विधि का निर्माण करना है। यह शक्ति पृथकता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह विधायिका का काम है। न्यायपालिका केवल विधि की समीक्षा कर सकती है कि वह संवैधानिक है या नहीं, या विधि का निर्वचन कर सकती है कि उस विधि की अगर व्याख्या करनी है तो उसका क्या अर्थ है। लेकिन विधि की व्याख्या भी तभी होगी, विधि का निर्वचन भी तभी होगा और विधि की समीक्षा भी तभी होगी जब विधि पारित हो गई हो। और पारित करने का अधिकार न्यायपालिका का नहीं है। क्यों? यह मामला कहां से शुरू हुआ? तो हमारे कुछ ऐसे राज्य जहां पर गैर भाजपा की सरकारें हैं, वहां की सरकारों ने विधानसभा से अपने अपने कुछ कानून पारित कराए, लेकिन उन राज्यों में राज्यपालों ने उनको रोके रखा और लंबे समय तक रोके रखने के बाद भी जब वो पारित नहीं हुए, जब राज्यपाल ने उन पर स्वीकृति अस्वीकृति के बारे में कुछ स्पष्ट आदेश नहीं दिया, तो वो राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय चली गईं, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने 2 न्यायाधीशों के खंडपीठ के द्वारा यह फैसला दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ऐसा ऐसा करना होगा, जिस पर भारत सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से परामर्श मांगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ 2 न्यायाधीशों के पीठ के द्वारा दिया गया यह निर्णय उचित है। और उसी पर 15वां परामर्श आया।